going to explain you today about the rural and urban population in India, and this topic is there in unit number 7. So, number of people in rural areas and the number of people living in urban area constitutes the proportion of rural and urban population. तो जो जो लोग जो ग्रामीण विस्तार में रहते हैं और जो लोग शहरी विस्तार में रहते हैं उन लोगों को रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में इंक्लूड किया जाता है. The rural and urban population is influenced by various factors like extent of employment, education, health, social life, quality of life, economic return, occupation, etc. तो जो रूरल और अर्बन एरिया का पॉपुलेशन जो होता है वो कई सारे फैक्टर्स की वजह से बढ़ता है, जैसे कि कितना एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन कैसा है, हेल्थ ओरिएंटेड फैसिलिटी कैसी है, सोशल लाइफ और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, इकोनॉमिक रिटर्न और लोग क्या काम करते हैं, उन सभी चीज़ों पर रूरल और अर्बन एरिया का पॉपुलेशन डिपेंड करता है. Here one table is also being represented that is showing the rural and urban population in percentage in different years as well as in crores. So in the next slide, on the basis of this table, a diagram is also being presented that I will explain to you. Hello everyone, I am going to present you the explanation that is related to rural and urban population. So here on the diagram on x-axis you can see the different years in which the population is increasing and decreasing, and on y-axis you can see the population of rural and urban areas in crores. So in the year 1901 the population of rural population was 21.2 crores, while in urban area that it was 2.6. In 1951 the rural population was 29.9 crores, while in urban area it was 6.2. And in 1981 the rural population was 52.4 crores, while in urban area it was 15.9. And in the year 2011 the rural population was 83.02, while in urban area it was 38 crores. So here in the diagram it is clearly shown that in different years the rural population was comparatively higher than the urban population. So in the next slide I will continue the analysis and conclusion that is based on this rural and urban population. Okay everyone, so let us continue with the analysis and conclusion that is based on the rural and urban population. In recent years, the urban population out of the total population is consistently rising. आप देख सकते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन अभी के सालों में जो अर्बन पॉपुलेशन है यानी कि जो शहरी विस्तार का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ रहा है. The problem of dirt and spoiler arise due to increase in herdsmen. तो अर्बन एरियाज में लोग झुपड़ियों में ज़्यादा रहने लगे हैं, इस वजह से कुछ डर्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स अराइज होने लगे हैं. Administration have been proved a failure in providing basic services like electricity, transportation, water, etc. due to lack of infrastructural facility. जो PWD है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो आपको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो भी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी ना होने की वजह से आपको बेसिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करने में फेल हुआ है. सोशल इवल ऑल्सो हैव अकर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्राइम, थेफ्ट, लूट एक्सेट्रा. हमारे पॉपुलेशन के ज़्यादा होने की वजह से कुछ क्राइम्स में भी बढ़ोतरी हुई है. क्राइम्स जो थेफ्ट, लूट के फॉर्म में अराइज हो रहे हैं. In 1901, the rural population was 21.2 crore, which was to 83.02 crores in 2011. जो रूरल पॉपुलेशन जो था वो पहले 21.2 करोड़ था, जो बाद में बढ़ के 83.2 करोड़ तक पहुंच गया था 2011 में. But there has been a registered fall in the percentage of rural population.
पर अभी देखा गया है कि रूरल पॉपुलेशन जो है उसमें थोड़ी गिरावट आई है. This is because lack of employment opportunities and the existence of widespread disguised employment and underemployment in rural sector. इसके पीछे रूरल पॉपुलेशन में घटाव आने की वजह से, रूरल पॉपुलेशन में गिरावट आने के पीछे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का कम होना, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा होना और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल सेक्टर में बढ़ने की वजह से जो रूरल पॉपुलेशन है वो घट रहा है. There are large scale employment opportunity in urban area leading to migration of people to rural to urban areas. एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज अर्बन एरियाज में ज़्यादा देखने को मिली है, इसलिए लोग जो है वो रूरल एरिया छोड़ के अर्बन एरिया की ओर माइग्रेट होने लगे हैं. Urban population was 2.6 crore in 1901, which rose to 38 crore in 2011. जो अर्बन पॉपुलेशन 2.6 करोड़ था 1901 में, वो बढ़ के 38 करोड़ तक पहुंच गया था 2011 में. For example, in every decade, percentage-wise increase has been registered. तो अर्बन पॉपुलेशन में हर एक 10 साल में परसेंटेज वाइज इंक्रीज आपको देखने को मिल सकता है. This is because of availability of various facilities in urban areas like electricity, school, college, theatre, housing, good roads, transportation, communication facility, cultural and entertainment activities, facility for good medical treatment, etc. ये जो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके पीछे कुछ फैसिलिटीज में इम्प्रूवमेंट आने की वजह से ये अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे कि अच्छी इलेक्ट्रिसिटी का होना, स्कूल कॉलेज से जुड़ी हुई रिक्वायरमेंट्स का फुलफिल होना, थिएटर, गुड रोड की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई अच्छी फैसिलिटी और कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई अच्छी फैसिलिटीज की वजह से जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है. Many people have migrated from rural to urban area because of जमींदारी सिस्टम एंड कंट्रोल ऑफ मनी लैंडर्स ऑन बिजनेस. तो कुछ लोग अर्बन एरियाज की तरफ इसलिए भी माइग्रेट हो रहे हैं, अर्बन एरियाज की तरफ इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि गांव के विस्तार में जमींदारी सिस्टम का ही वजह से और जो मुनीम लोग हैं वो जनरली गांव के गरीब लोगों के बिजनेस को कंट्रोल कर लेते हैं. इस वजह से भी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है. तो रूरल एरियाज में अच्छे लिविंग स्कोप ना होने की वजह से कुछ रूरल पीपल जो है वो अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट इज लीडिंग टू राइजिंग अर्बन पॉपुलेशन. Okay everyone, so let us continue with the causes of rapid increase in population. There are two factors affecting the increase in population, that is birth rate and death rate. The difference between birth rate and death rate is the cause of increase in population. In other words, it can be said that high birth rate and low death rate has lead to population increase. तो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज होने के पीछे दो फैक्टर्स काम करते हैं. उन्हें बर्थ रेट और डेथ रेट आप कह सकते हो. और जो डिफरेंस होता है बर्थ रेट और डेथ रेट का, उसकी वजह से जो पॉपुलेशन होता है वो बढ़ता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हाई बर्थ रेट हो और लो डेथ रेट हो तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगता है. Now, in the next slide, I will explain you the point that is related to birth rate. Hello everyone, so let us start with the explanation that is related to birth rate. Birth rate depicts the number of children born for every 1,000 people during the given year. तो 1000 में से कितने बच्चे जन्मे हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, उसके थ्रू आप बर्थ रेट पता कर सकते हो. बर्थ रेट की एक फॉर्मूला भी है यहाँ पे. Birth rate is equal to number of live birth during a given year divided by total population into 1000. तो अगर आपको बर्थ रेट इवेलुएट करना है तो पहले एक ईयर में कितने बर्थ हुए हैं यानी कितने बच्चे जन्मे हैं उसका पता लगाने के बाद उसे टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके और 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको बर्थ रेट मिल सकता है.
Birth rate is not depicted as percentage, but every 1,000 people, how much is the addition taking place is shown. तो बर्थ रेट को परसेंटेज के फॉर्म में दिखाया नहीं जाता, लेकिन आप ये पता लगा सकते हो कि 1,000 लोगों में से कितना पॉपुलेशन का एडिशन हो रहा है, उसका आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो बर्थ रेट के थ्रू. On the basis of birth rate, the increase in the population is known, and the data on birth rate help in deciding population policy. तो बर्थ रेट के बेसिस पे आप ये पता लगा सकते हो कि पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, और आपको बर्थ रेट की मदद से पॉपुलेशन से ओरिएंटेड पॉलिसी डिसाइड करने में भी हेल्प मिलती है. एक्सटेंट ऑफ बर्थ रेट इन इंडिया ईयर 1951 एंड 2011. सो यहाँ पे बर्थ रेट कितना इंडिया में था उससे ओरिएंटेड एक इंफॉर्मेशन भी है टेबल में. दैट इज इन द ईयर 1951 the birth rate was 39.9, while in 2011 it was 21.8. So analysis and conclusion that is based on this table is, in 1951 the extent of birth rate in India was 39.9, which decreased to 21.8 in the year 2011. The difference was 18.1, which shows a slow reduction in the birth rate. तो पहले 1951 में 39.9 था बर्थ रेट, जो रिड्यूस होके 21.8 हो गया, जो ये दिखा रहा है कि बर्थ रेट में एक स्लो रिडक्शन आया था. द मेन रीजन फॉर दिस आर लो लेवल ऑफ एजुकेशन, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, एंड लो इनकम लेवल एक्सेट्रा. इस रिडक्शन के पीछे कुछ रीजंस थे, जैसे कि एजुकेशन लेवल का ठीक तरीके से ना होना, और मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफर करना, और लो इनकम लेवल होने की वजह से बर्थ रेट जो है वो 2011 में थोड़ा रिड्यूस हो गया था. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल कंटिन्यू विद द मीनिंग ऑफ डेथ रेट. Hello everyone, let us continue with the meaning and analysis and conclusion of death rate. So the death rate depicts the number of people who die per every 1,000 people during a given year. तो 1000 में से कितने लोग एक पर्टिकुलर ईयर में मर रहे हैं, उसके बेस पे डेथ रेट निकाला जाता है. डेथ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन अ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000. तो अगर आपको डेथ रेट फाइंड आउट करना हो तो इसकी एक फॉर्मूला है, जिसमें पहले कितने लोग एक साल में मर जाते हैं उसे देखा जाता है, फिर उसे टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड किया जाता है, और बाद में उसको 1000 से इंटू किया जाता है, मीन्स 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है. द डिक्रीज इन पॉपुलेशन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डेथ रेट. तो डेथ रेट ज़्यादा होने की वजह से कभी कभार पॉपुलेशन में रिडक्शन आता है. The reduction in the total population in a particular manner can be understood by measuring the total number of deaths in a year. तो अगर कहीं भी किसी के पर्टिकुलर एरिया के पॉपुलेशन में या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री के पॉपुलेशन में रिडक्शन आ रहा है, तो उसको ठीक तरीके से समझने के लिए पहले हमें टोटल जो डेथ रेट होता है एक पर्टिकुलर ईयर में जो अराइज हो रहा है उसे समझना ज़रूरी है. Now the extent of death rate in India, it is shown that in year 1951 it was 27.4, and in the year 2011 it was 7.1, and this census of India was conducted in the year 2011. Analysis and conclusion that is based on this table is, the death rate in India in 1951 was at 27.4, which fell to 7.1 in 2011. So the difference is 20.3. The fall in the death rate is much higher than the fall in the birth rate. जो फॉल यानी कि जो गिरावट डेथ रेट में आई थी वो बर्थ रेट के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा थी, यानी कि जो भी घटाव या फिर जो भी गिरावट बर्थ रेट में जितनी आई थी उसके कंपैरिजन में जो भी गिरावट डेथ रेट में आई है वो कंपैरेटिवली हायर था, और ऐसा कुछ फैसिलिटीज के इम्प्रूवमेंट की वजह से हुआ. द मेन कॉज आर कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, improvement in quality of life, nutrition, food,
increase and improvement in medical service, spread of education, improvement in medical science, research in the field of surgery, control of infectious disease, etc. तो जो डेथ रेट में इतना जो घटाव आया था या फिर डेथ रेट में इतनी जो गिरावट आई थी, वो कुछ फैसिलिटीज के इम्प्रूवमेंट की वजह से आई थी, जैसे कि फेमाइंस के ओरिएंटेड सिनेरियो को कंट्रोल करना, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट आना, न्यूट्रिशन फूड का अच्छे से सप्लाई होना, और जो भी इम्प्रूवमेंट मेडिकल साइंस मेडिकल ओरिएंटेड सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट आना, इन सभी चीज़ों की वजह से जो डेथ रेट था उसमें गिरावट आई थी. Now the next point is related to the causes that are related to population, that I will continue in the next slide.